Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Ashapura School Bhuj, and today now going to continue our new lesson, chapter number 3, pair of linear equation into variable. Once again I repeat, we will start a new lesson, chapter number 3, pair of linear equation into variable x and y. So from the very first video, we are going to discuss some basic concept for the chapter, and then after next video we are going to start exercise and some examples with pair of linear equation into variables. So let's see and understand, try to understand basic concept of the pair of linear equation into variables. First, linear equation into variable. Linear equation into variable. What is the linear equation and what is the form of two variable linear equation? So here, an equation which can be put in the form of ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c belongs to R. That means a, b and c are real numbers, and a and b is not equal to 0 is called the linear equation into variable. तो दोस्तों सबसे पहली बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या है ये देख लेते हैं. सो इक्वेशन व्हिच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में हमारे सामने रिप्रेजेंट होता हो. किस तरह के फॉर्म में? ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are the constant, a, b and c are the constants, and also a, b and c belongs to R, means के रियल नंबर a, b और c कांस्टेंट नंबर जो रियल नंबर होंगे. दूसरी बात, यहाँ पर a है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, b है वो कोफिशिएंट ऑफ y है और c कांस्टेंट नंबर है. और दूसरा, meanwhile a and b is not equal to 0 but together is called the linear equation into variable. Now जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. जनरल फॉर्म कैसा होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में, ये देखने जा रहे हैं. जनरल फॉर्म्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स इज एज a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where a1, b1, c1, a2, b2 and c2 belongs to R, means the real number, and such that a1 square plus b1 square is not equal to 0. Similarly, a2 square plus b2 square is not equal to 0. So this is the general form of the pair of linear इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स. ओके, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि इसका जो जनरलाइज फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का, ये इस तरह से हमारे सामने आएगा. a1x plus b1y plus c1 equal to 0, और दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशन होगा a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Here from the equation number 1, a1 is called the coefficient of x, b1 is called the coefficient of y, and c1 is called the constant, which are the real numbers. And from the equation number 2, a2 is called the coefficient of x, b2 is called the coefficient of y, and c2 is called the constant number from equation 2. So a1, b1, c1, a2, b2 and c2 are the constant numbers, and they are all are the real numbers. And also such as condition here, a1 square plus b1 square is not equal to 0 and a2 square plus b2 square is not equal to 0. इस कंडीशन को नेसेसरी एंड एसेंशियल कंडीशन को लेते हुए यहाँ पर जो पेयर ऑफ इक्वेशन हमें मिलेंगे x और y वेरिएबल के साथ, इसे हम कहेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पहली बात हमने की लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स क्या है. दूसरी बात हमने की जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स क्या है. अब तीसरी बात वो है सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स. सो द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, हियर टू वेरिएबल्स आर x and y, इज द पेयर ऑफ वैल्यूज, one of the x and second of the y, which makes the two sides of the equation equal.
सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसे कहते हैं, जहां पर x और y जो वेरिएबल्स हैं इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज, इसकी पेयर ऑफ वैल्यूज मिलती हैं, मतलब कि x इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू n, समथिंग इस तरह से मिलता है, x y इज इक्वल टू m n, पेयर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर मिलती हैं, वन ऑफ द x एंड वन ऑफ द y, विच मेक्स द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल, जिसकी वजह से इक्वेशन की दोनों साइड है वो इक्वल बनती है, बैलेंस बनती है, इक्विवेलेंट बनती है। सो देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके की मेथड्स का यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द अलजेब्रिक मेथड, पहली मेथड जो है वो है अलजेब्रिक मेथड। इस अलजेब्रिक मेथड्स के अंदर मेन 3 मेथड्स है, जिसमें एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आर यूज इन द अलजेब्रिकल मेथड्स। तो अलजेब्रिकल मेथड्स में हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मेथड देखेंगे, 3 मेथड्स का यूज करेंगे, वन बाय वन। पहले सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद एलिमिनेशन और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जो दूसरा टाइप्स ऑफ मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड्स, मतलब कि ग्राफ का यूज करते हुए। ग्राफिकल मेथड्स के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के ग्राफ हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला इफ द ग्राफ ऑफ द 2 इक्वेशंस of a system intersect at a point, the system is said to have a unique solution. That means the system is consistent. कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करने से मिलने वाली ग्राफ और पेपर पर मिलने वाली पॉइंट प्लॉटिंग करने से मिलने वाली 2 लाइन अगर जो इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, तो ऐसे सिस्टम के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब कि x और y की कोई एक यूनिक वैल्यू, कोई एक सर्टेन वैल्यू मिलने वाली है, और ये जो सिस्टम बनेगी ये सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगी। Second option, if the graph of the 2 equation of a system are 2 parallel lines, the system is said to have no solution, and that means the system is inconsistent. अगर जो यहाँ पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसका ग्राफ प्लॉटिंग करते हुए हमें 2 पैरेलल लाइंस मिलती हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन इज अवेलेबल, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, और ऐसे में ये सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कही जाएगी। तीसरा ऑप्शन बनता है इफ द ग्राफ ऑफ द 2 इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम आर 2 कोइंसिडेंट लाइंस, 2 कोइंसिडेंट लाइंस आर अवेलेबल, मतलब कि दोनों इक्वेशन के लिए कोई सेम लाइन मिलता है, सिमिलर लाइन मिलता है, यूनिक लाइन मिलता है, तब हम कहेंगे कि कोइंसिडेंट लाइंस हमें मिल रही है। तो ऐसे में सिस्टम है इज सेड टू हैव द इन्फिनिटिवली सॉल्यूशंस इज अवेलेबल। तो यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्फिनिटिव नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस अवेलेबल है, और ये सिस्टम है वो कंसिस्टेंट सिस्टम भी है और डिपेंडेंट सिस्टम भी कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 ऑप्शंस देखे ग्राफिकल मेथड्स का यूज करते हुए। अगर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए और दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर जो 2 पैरेलल लाइंस अवेलेबल बनती हैं तो ये नो सॉल्यूशंस कहलाएगा, और अगर जो यहाँ पर हमें एक कोइंसिडेंट लाइन मिलती है तो इसका मतलब है कि इसके इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड्स, लेकिन ग्राफिकल मेथड शुरू करने से पहले हम एक्सरसाइज 3.1 पर जाएंगे, जहाँ पर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म किस तरह से होता है ये देखेंगे, और साथ में इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल वे पर किस तरह करते हैं ये देखेंगे। तो तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद एंड बाय।